Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine at your home. So, let's start the class of accountancy. Dear students, we were discussing the chapter change in profit sharing ratio, and we have discussed first 15 unsolved question. So, today we'll start from question number 16. So, let's take a reading. On 1st April 2020, this is 1st April, on 1st April 2020, an existing firm had assets of rupees 5 lakh. फर्म के पास assets कितने की थी? 5 lakh, including cash of rupees 20,000. कहता है इसमें कैश भी शामिल है. इफ़ दिस कैश वाज एक्सक्लूडिंग, अगर ये एक्सक्लूडिंग होता तो हमें ऐड करना पड़ता, अब तो इसमें है नो प्रॉब्लम. द फर्म हैड जनरल रिजर्व ऑफ रुपीज़ 90,000. फर्म के पास 90,000 रुपीज़ के जनरल रिजर्व में हैं. जनरल रिजर्व कैपिटल का ही पार्ट होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते टाइम ये ऐड हो जाता है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस ऑफ रुपीज़ 3,80,000. टोटल जो पार्टनर्स हैं जितने भी हैं उनकी टोटल कैपिटल कितना बैलेंस शो करती है? 380. एंड क्रेडिटर्स हमारे बताता है 30,000 के. ओके. इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 20%, अगर नॉर्मली जो हम प्रॉफिट अर्न करने की रेट है वो बताएं तो दैट इज़ 20%, sorry. And goodwill of the firm is valued at 64,000 at 4-year purchase. Listen to me, here goodwill is already collected. This is calculated 64 at 4-year purchase of the super profit. Find the average profit. What we have to find here? Average profit. Okay, so come. Capital employed, capital plus reserve. Okay, capital plus reserve 470. You may calculate the capital employed by another method also. टोटल एसेट्स में से आप अपनी करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर देना. 5 लाख माइनस 30,000 तो 470 ही आ जाएगा. तो दैट इज़ योर कैपिटल एम्प्लॉयड. नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? क्या फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट का? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट बाय 100. दिस इज़ 94,000. ओके. 470 मल्टीप्लाई 20 बाय 100. तो what is the formula of goodwill? Super profit multiply 4 year. Here I want to tell you the formula of calculating goodwill may be different in different cases, but here in this question, because this is given as per the super profit, so we will to put this formula super profit multiply by 4, and this is given 64. Super profit will be calculated 16,000 like this. ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल डिवाइड हो जाएगा. सो सुपर प्रॉफिट विल बी, एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट आर 16,000 वी हैव कैलकुलेटेड. एक्चुअल प्रॉफिट्स वी डोंट नो अबाउट इट. नॉर्मल प्रॉफिट्स हमने कैलकुलेट किए 94,000. तो जब आप साइड्स चेंज करोगे तो यू विल फाइंड दैट द एवरेज प्रॉफिट विल बी 1,10,000. ओके. तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 16. Up to question number 16, the questions were calculating the goodwill, calculating the average profit, calculating the normal profit as per super profit method. Dear students, from question number 17, our capitalization method is started, and capitalization method is divided among two parts. First is capitalization of average profit, second is capitalization of super profit. So today we will do the questions of capitalization of average profit. So let's take the reading of statement. The average profit of a firm is 48,000. These are the average profit जो हम actual में earn कर रहे हैं. Okay. The total assets of the firm are 8 lakh. Firm की total assets क्या हैं? 8 lakh. And the value of the liabilities are 5 lakh. Assets minus liability will be the capital. Average rate in return in the same business is 12%. नॉर्मल प्रॉफिट्स की रेट क्या है? 12%. आपने कैलकुलेट करनी है गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड. ओके. सी,
एवरेज प्रॉफिट्स क्या दे रखे हैं क्वेश्चन में हमारे को 48,000, दीज आर गिवन ऑलरेडी, नो नीड टू कैलकुलेट. रेट इज ऑल्सो गिवन 12%. कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मीन्स हमने ये देखना है कि ये जो एवरेज प्रॉफिट हमने अपने अर्न कर रखे हैं, इनको अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है एज पर नॉर्मल रेट. क्योंकि हम 12% की रेट से कमा रहे हैं, तो इसको कैपिटलाइज करने के लिए हम रेशो रिवर्स कर देते हैं. तो कहता है 4 लाख मीन्स ये जो 48,000 के हमने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, वेट, यस 48,000, बाय मिस्टेक इट इज़ रिटन 480, सॉरी. तो इन 48,000 के प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, 4 लाख की. बट एक्चुअल में ये प्रॉफिट हमने कितनी कैपिटल पे अर्न किए, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस एंड दैट कैपिटल इज योर गुडविल. और एक्चुअल में कैपिटल है कितनी हमारी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, दिस इज 3 लाख. नाउ सी द डिफरेंस कि ये जो 48,000 के प्रॉफिट्स हैं, इनको अर्न करने के लिए हमारे को कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी 4 लाख की. बट हमने तो ये अर्न कितने पे कर दिए, 3 लाख पे ही अर्न कर दिए. सो द डिफरेंस विल बी द गुडविल. गुडविल विल बी एक्चुअल कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल. 4 minus 3 is 1 lakh. This is our goodwill. Okay, I hope you all are getting what I am saying. Question number 17. अनुपमा, पूर्णिमा एंड रुचिका, दीज आर 3 पार्टनर्स, और उनके कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस ये दे रखे थे. अनुपमा का ये, पूर्णिमा रुचिका का ये दीज आर द बैलेंसेस ऑफ कैपिटल एंड दीज आर द बैलेंसेस ऑफ देयर करंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, व्हेन द टोटल कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड, तो दीज आर एडजस्टेड अमंग दीज. जिसका डेबिट बैलेंस होता है वो माइनस हो जाएगा, एंड जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है वो प्लस हो जाएगा. लाइक जब आप अनुपमा की कैपिटल निकालोगे, अनुपमा की कैपिटल निकालते टाइम आप इसको माइनस करोगे, तो हर टोटल नेट बैलेंस विल बी 540, हर बैलेंस विल बी 470, and Ruchika's balance will be 5,10,000 because credit balance is given. Okay, so come. The firm earned average profit of rupees 40,000. फर्म एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है, 40. द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना, 40, नॉर्मल रेट कितना, 12%. तो कैपिटलाइज करेंगे कि भी इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी और है कितनी. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गुडविल. तो हेयर द बैलेंसेस ऑफ 3 partners like I have told you, 540 and these. After that, the actual capital, this is the actual capital 3 partners की जो हमने एडजस्ट करके बताई थी, अभी निकाला था मैंने. this is the actual capital. okay, now average profits are 2,40,000. नॉर्मल रेट क्या है, 12% है. तो इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल की ज़रूरत पड़नी चाहिए हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट कर दो. रिवर्स हमने किया तो दैट विल बी 20 लाख, and we are earning these profits on 15 lakh 20. So the difference between both is your goodwill. Capitalized average profit minus actual capital, this is your goodwill. And here you may see that 4,80,000 is the value of goodwill. I think it's enough for today. So till then, bye.